Hello guys, once again you're welcome to our class of English where we will learn how to write a speech. In our earlier classes we have learned how to write an invitation. In invitation section we learned what is the meaning of invitation, why do we write an invitation, it means the purpose of the invitation, and we learned the types of invitation. In the types we learned that invitations are of two type, which one in which the one is formal and another is informal. In formal writing, in a formal writing section we have some set of rules which we must apply in writing. Okay, some code of conduct we have to manner because these were the formal invitation. हमने फॉर्मल नोटेशन में क्या क्या किया था कि हम थर्ड पर्सन यूज़ करेंगे, प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, एक सिंगल सेंटेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है, और हम वर्ड लिमिट को 50 तक ही रखेंगे. ओके. उसके बाद हमने इनफॉर्मल किया था जहाँ पे हमने कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं निभाई, एक पर्सनल लेटर की तरह इनवाइट कर दिया था. अब हम बात करेंगे उनके रिप्लाईज़ की. हमने रिप्लाई में बताया था कि जैसे हमारे इनविटेशन दो तरह के, उसी तरह उनकी रिप्लाई भी दो तरह के, फॉर्मल और इनफॉर्मल. अब दोनों ही फॉर्मल और इनफॉर्मल में वी टोल्ड यू दैट you have to give your acceptance and you have to give your rejection, means the reason you also have to tell. In the same way as you dealt with the formal invitation, formal replies are also like that. Okay, it means that in reply also you will write very short, concise, third person, only one sentence, and a present tense will be used. Okay, and in formal replies you will not follow any formality, just you will write as you are dealing with your friend, your familiar person, okay, your relative. Now we are learning speech writing, and these now onwards I am going to teach you are very important. ठीक है, ये सभी जो मैं आपको अब पढ़ाने वाली हूँ, दो तीन टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये 10 नंबर के लिए हैं. इट इज़ ऑफ 10 मार्क्स इन 11th एंड इन 12th. राइटिंग सेक्शन इज सेम, सो यू हैव टू पे मच एंड मोर अटेंशन. इससे पहले जो मैंने आपको 4 सेक्शन कराए थे राइटिंग के, कौन से? नोटिस राइटिंग, पोस्टर राइटिंग, इन्विटेशन राइटिंग और एडवर्टीजमेंट. ये चारों थे 4 नंबर का हर एक, 4 नंबर ऑफ ईच. चारों लिखने कभी नहीं आते, चारों में से एक लिखना होता है. ठीक है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ स्पीच राइटिंग, ये मस्ट आती है. ठीक है, ज़रूर आती है, और वो भी 10 नंबर में. तो एक 10 नंबर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आपने लिखना, इट्स समवट अ डिफिकल्ट जॉब बिकॉज यू हैव सो मच आइडियाज़ इन योर माइंड, बट इट्स वेरी हार्ड जस्ट टू अरेंज दैम इन अ सीक्वेंस. English is not just you have learned the grammatical rules. It's somewhat different thing. It means if you have a large number of vocabulary with you, you are able to write and you are able to speak in a perfect way without knowing even the full grammatical rule. So English is just to increase your vocab system. So in the same manner, speech, it means it's a writing tool. Speech writing is also very important from the point of view of vocabulary increase, increment, vocabulary enhancement. It means to write a speech you have to enhance your vocabulary. It's just not a matter of cramming. Cramming नहीं करनी है. Here you have only just to think about the word and apply it in a sentence. And writing such a long sentence, making it superfluous, is a very tedious, very wastage of work. But you have to write the sentence which include mostly 10 to 12 वर्ड्स. 10 से 12 वर्ड्स वाले सेंटेंस ही आपने लिखने हैं. क्रैमिंग की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी टॉपिक हो, जस्ट आपको फॉर्मेट में जाना है और अपनी वोकेबलरी को फॉर्मेट में आपने ढाल देना है. This is what we are telling you about the speech writing. Of course, tips we will also give you, but before that you will learn what is the meaning of speech writing, what is the type of speech writing. Actually, speech refers to a formal address or discourse delivered to an audience. बिल्कुल सही बात है. स्पीच किससे रेफर करती है? फॉर्मल, यानी कि यहाँ पे भी हमें फॉर्मेलिटी निभानी होंगी. फॉर्मेलिटी निभाने का मतलब क्या होता है? वी हैव टू ग्रीट द ऑडियंस.
ठीक है, वी हैव टू विश, वी हैव टू ग्रीट द ऑडियंस, वी हैव टू विश, ठीक है. सो वी हैव टू राइट what so we have to greet the audience. It means we have to play a very important role in this formal address. ठीक है, हमने अपनी ऑडियंस को पहचानना होता है स्पीच राइटिंग में. नेक्स्ट देखिए, स्पीच राइटिंग होती क्या है. इन एग्जामिनेशन नथिंग हैज़ बीन गिवन टू यू पर्पजलेसली. कोई भी चीज़ आपको पर्पजलेसली नहीं दी जाती, ठीक है, बिना वजह कोई भी चीज़ नहीं दी जाती, सबका एक पर्पज़ होता है. बिफोर राइटिंग ए स्पीच मेक श्योर यू आर राइटिंग टू इन्फॉर्म द पीपल. स्पीच लिखने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि हमने लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, हमने उन्हें परसुएड करना है, हमें उन्हें कन्विंस करना है, हमने उन्हें को एंटरटेनमेंट करना है. क्लैरिटी ऑफ द पर्पज़ विल इंश्योर क्लैरिटी इन द चॉइस ऑफ स्टाइल एंड वोकैबलरी. अगर आपका पर्पज़ क्लियर होगा तो आप अपनी वोकैबलरी और अपने स्टाइल दोनों को क्लियरली प्रेजेंट कर पाएंगे. ठीक है, सो ये जो राइटिंग सेक्शन है स्पीच राइटिंग, ये लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है, इसलिए आपको 150 to 200 वर्ड्स में ही लिखना होगा. दिस वन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेट. ठीक है, क्या फॉर्मेट है इसका. तो सबसे पहले हमने जैसे कि बताया था, स्पीच इज़ अ वेरी फॉर्मल टॉक दैट अ पर्सन डिलीवर्स टू हिज ऑडियंस. जो एक अपनी ऑडियंस को एक पर्सन बातें करता है फॉर्मल वे में, वो होती है स्पीच. It must have the capacity to hold the attention of the audience with the proper choice of words, expressions and example. तो वो कहता है कि इस फॉर्मल टॉक में इतनी तो कैपेसिटी ज़रूर होनी चाहिए कि ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब कर सके. ठीक है, प्रॉपर उसमें वर्ड चॉइस हो, एक्सप्रेशन अच्छे हो, उसमें एग्जाम्पल ठीक ठाक दिए हों. At the same time, care should be taken not to deviate from the main subject. Not only the attention we have to pay towards the word or expression, but we have to take care that we should not go far away from our main topic. Means we have to give the ideas which are related to our speech. Okay, you must keep in mind that it's a speech and you need to begin the draft with addressing the audience. आपको ध्यान में रखना है स्पीच राइटिंग है ये, और आपने ज़रूर अपने दिमाग में बिठा लेना है कि हमने शुरू करना है ऑडियंस को एड्रेस करने के साथ ही, ऑडियंस को विशिंग करने के साथ ही हमारी शुरू हो जाती है स्पीच राइटिंग. और एंड करना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और एंड करना है कब, ऑडियंस को थैंक्स बोलते हुए. ठीक है, ध्यान में रखना है कौन कौन से पॉइंट्स को. आप डेफिनेशन लिखेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखेंगे. ठीक है, हु यू आर राइटिंग द स्पीच. आप किसको लिख रहे हो, मतलब आपकी ऑडियंस कौन है. वो कोई चिल्ड्रन हैं, वो टीनेजर हैं, वो अडल्ट हैं, ओल्ड पीपल है, या एक स्पेशल प्रोफेशनल के लोग हैं. ऑडियंस को ध्यान में रखते ही हमारी वोकैबुलरी उसके अकॉर्डिंग चूज़ की जाती है. वट योर स्पीच इज़ गोइंग टू बी. आपकी स्पीच किसके बारे में होने वाली है. इट मीन्स अबाउट द मेन पॉइंट्स इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस. ठीक है, आपने मेन पॉइंट अपने ज़रूर ही डिस्कस करने हैं. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द रिटन स्पीच शुड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सेंटेंस. ये मैंने पहले ही बता दिया है. डोंट यूज़ टू लॉन्ग सेंटेंस, बट इट्स जस्ट रिकमेंडेड टू यू, इट्स जस्ट सजेस्टेड टू यू टू यूज़ द स्मॉल सेंटेंसेज which doesn't have more than 10 to 12 words. उसके बाद कुछ वैल्यू पॉइंट्स हैं. ग्रीट योर ऑडियंस, इंट्रोड्यूस द टॉपिक यू आर स्पीकिंग ऑन. अपनी ऑडियंस को ग्रीट करना है, मतलब ऑडियंस को विशिंग करनी है, और इंट्रोड्यूस करो वो टॉपिक जिसके बारे में आप अभी बातें करने जा रहे हो. इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द स्पीच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सबसे पहले हमने ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन जो पार्ट हम दे रहे हैं स्पीच का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. यानी कि समवन डोंट हैव सो मच द टाइम दैट ही और शी विल टेक सो मच अटेंशन टू योर स्पीच. ही विल ओनली पे अटेंशन टू योर बिगिनिंग और टू योर एंडिंग. सो जस्ट be much and more conscious while writing the speech in the beginning and at the end. शुरू में और एंड में आपको थोड़ा सा कुछ ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा. ठीक है, स्पीच राइटिंग करते हुए, क्योंकि इंट्रोडक्शन जिसका इम्प्रेसिव हुआ वो समझ लीजिए कि आपकी मार्क्स कटने में कोई चांस नहीं रहेगा. बिकॉज यू ऑल्सो लर्न द फ्रेज. क्या, ये भी आपने कहावत सुनी है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. तो राइटिंग में भी यही होता है. ठीक है, जब कोई भी अगर आपकी इंट्रोडक्शन से इम्प्रेस हो गया तो ही एंड शी विल गेट द idea that you have the enough potential to deal with the subject in a very tactful way. So introduction must be very catchy, must be very concise. हमारी आई कैचिंग होना चाहिए, अटेंशन ग्रैबर होना चाहिए, और ये कंसाइज यानी कि छोटा होना चाहिए.
इट इज़ द पार्ट विच डिसाइड द इम्पैक्ट ऑफ द स्पीच, ये वही पार्ट है जो कि स्पीच का इम्पैक्ट, स्पीच का इम्प्रेशन जमाता है। डोंट गिव सेपरेट टाइटल फॉर द स्पीक, ये नेसेसरी भी नहीं है, लेकिन अगर आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। सेपरेट टाइटल चाहे दो चाहे मत दो। कीप इन माइंड एज ऑलरेडी स्टेटेड द ओकेजन ऑफ स्पीच एंड द नेचर ऑफ ऑडियंस, पहले ही बता दिया क्या ओकेजन पे हम बात कर रहे हैं और हमारी ऑडियंस कौन सी है, ये भी हमने बताया। इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी वेरी लेंदी, लेंदी नहीं होना चाहिए। द मेन टॉपिक शुड बी टेकन अप एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके ऑडियंस को ग्रीट किया, उनको एड्रेस किया, ठीक है, अपना थोड़ा सा बताया कि वेयर यू आर रीडिंग एंड हूम यू आर, तो उसके बाद हमने सीधा सा टॉपिक पे आ जाना है, ठीक है। अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा दो। यूज़ कॉन्क्रीट आइटम्स एंड टेंजिबल एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल हमें हजम हो सके, जो फैक्ट पे आधारित हो, वही आपको देने हैं। अवॉइड एब्स्ट्रैक्ट फ्रेजेस विच आर क्वाइट वेग, ऐसी फ्रेजेस से बचिए जो कि वेग होती हैं, जो कि क्या होती हैं, नॉट इन ट्रेंड होती हैं, और जो कि क्या होती है, हमें क्लियर नहीं होती। वेग का मतलब क्या होता है, द थिंग दैट इज़ नॉट क्लियर। यूज़ सिंपल एंड फैमिलियर लैंग्वेज यूज़ करनी है हमने। कंक्लूजन पे हमने पहले ही बोला है, कंक्लूजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जैसे कि बिगिनिंग में था, एज द बिगिनिंग प्लेज, ठीक है। गिव योर ओन कंक्लूजन ऑन द टॉपिक इन अ वेरी टेलिंग मैनर, कंक्लूजन देते हुए आपके टॉपिक पे आपने बिल्कुल फॉर्मल वे में बात करना है, जैसे कि आप सामने वाले से बिल्कुल फेस टू फेस बात कर रहे हो, ऐसे। मार्किंग स्कीम इज़ द सेम फॉर द आर्टिकल, मार्किंग स्कीम इसकी हम आपको बता देंगे। लास्ट में आपने अपनी ऑडियंस में थैंक यू ज़रूर बोलना है। देखिए दिस वन इज़ द फॉर्मेट। ओपनिंग एड्रेस और कंक्लूजन दोनों का नंबर है 1। कंटेंट के नंबर कितने हैं, 4। बिल्कुल, कंटेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि रिलेटेड टू द थीम, रिलेटेड टू द टॉपिक से रिलेटेड हमारा जो हम यूज़ कर रहे हैं सेंटेंसेस, क्या वो रिलेटेड है भी या फिर नहीं, आप वैसे ही कुछ लिख रहे हो। उसके बाद 5 नंबर है एक्सप्रेशन में, मतलब ग्रामेटिकल एक्यूरेसी में, अप्रोप्रिएट वर्ड में, स्पेलिंग्स में, इन सब में करते हैं 5 नंबर। ये बिल्कुल ठीक है कि अगर आपने कंटेंट सारा ठीक लिख दिया है, ओके, कंटेंट सारा ठीक लिख दिया, लेकिन एक्सप्रेशन करते हुए अगर आपने ये दे दिया कि जस्ट मिनट, लेकिन जैसे आपने एक्सप्रेशन में ये देखा कि यहाँ पे बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो आपको ये 4 नंबर तो पूरे मिलेंगे, वो कंटेंट, वो 1 नंबर भी मिलेगी आपको कंटेंट का। तो इस 5 में से अब आपकी जो गलतियाँ, उसके मार्क्स कटेंगे, यानी कि हर एक चीज़ के अलग अलग मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं कि 10/10 मिल जाते हैं, कुछ और मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हो जाते हैं आपके क्या, फॉर्मेट क्या होता है। इन ऑर्डर टू राइट अ परफेक्ट स्पीच वी मस्ट बी वेल एक्वेंटेड विद द टॉपिक एंड मस्ट पोजेज अ वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी, मैंने पहले ही बताया था कि आपको ये जो लॉन्ग राइटिंग स्किल है, यानी कि ये जो स्पीच राइटिंग है, आगे हम डिबेट राइटिंग सिखाएंगे वो, और आर्टिकल राइटिंग, या फिर रिपोर्ट राइटिंग, इन सब के लिए आपको अपनी वोकेबलरी को अनरिच करना है, वोकेबलरी को बढ़ाना होगा। जैसे ही वोकेबलरी बढ़ेगी आपको अपने आप आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे। थॉरो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, साथ में आप जिस टॉपिक पे लिख रहे हो उस टॉपिक की आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। सम रिसर्च एंड एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन स्किल, उसके बाद जितने भी आइडियाज़ आपके माइंड में हैं उनको आप रिसर्च कीजिए, उनको एक्सीलेंट वे में ऑर्गेनाइज कीजिए, ये सब हेल्पफुल होंगे आपकी स्पीच को राइट करने में। फिर भी कुछ आइडियल फॉर्मेट हैं, टिप्स हैं, जो कि आपको इसको लिखने में, परफेक्ट स्पीच को लिखने में मदद करेंगे, ठीक है। ये हम कल डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आपके लिए काम यही है कि आप ये जो 1-2 रूल बताए हैं, डेफिनेशन बताए हैं, ये लिखिए, और आपको इसके साथ ही असाइनमेंट भी भेज रही हूँ, आपको वो असाइनमेंट अपनी फेयर नोटबुक में करना है। आपको उस किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन, उससे रिलेटेड मेन पॉइंट, ये सब आपको फेयर नोटबुक में लिखने होते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।